Hello everyone. Today we will see various kinds of discontinuities of a function. Say f is a function from a domain A to R and it is said to be discontinuous at x equals to A. If f is functional value at A is not defined, then the function is said to be discontinuous at A. And what about other kinds of discontinuity? Then discontinuity of first kind is when left hand limit at A, that is limit extends to A negative fx, this, and limit extends to A positive f of x. These both exist but not equal. जब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं बट दे आर नॉट इक्वल, then we can say that the function fx has discontinuity of first kind at x is equals to a. We can see this thing with the help of an example. Example is like we have function fx mod x over x when x is not equals to 0, and at x is equals to 0 we have functional value 1. Then when we calculate left hand limit, that is limit x tends to 0 negative mod x over x, what we will get? We get minus 1. And when we calculate right hand limit, that is limit x tends to 0 positive mod x over x, then we get one. Then we can easily see that हम क्या आराम से क्या देख सकते हैं यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, बट वो दोनों आपस में लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है. देन वी कैन से दैट दिस फंक्शन गिवन फंक्शन एफ एक्स हैज़ डिसकंटिन्यूटी at x is equals to 0. This function fx is discontinuous at x is equals to 0 and it has discontinuity of first kind. Okay. Now we can see what about discontinuity of second kind. Discontinuity of second kind में क्या होता है कि आपकी either left hand limit, discontinuity of second kind means if either left hand limit, that is limit extends to a negative fx और लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx, इनमें से आपकी कोई भी एक लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही हो, आइदर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना कर रही हो या आपकी राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना कर रही हो, और बोथ, अगर दोनों लिमिट भी आपकी और बोथ डजेंट एग्जिस्ट, देन हम कहेंगे कि दैट फंक्शन fx हैज़ discontinuity of second kind at x is equals to a. Okay. Now इसके लिए अगर हम एग्जांपल देखें तो से वी हैव फंक्शन fx is equals to 2 raised to power 1 by x. This is 1. 2 raised to power 1 by x when x is not equals to 0 and 0 say as x is equals to 0. Now when we calculate say right hand limit or left hand limit, that is limit x tends to 0 positive, अगर आपके पास आपने लेफ्ट हैंड चेक की वो एग्जिस्ट नहीं कर रही हो या आपने पहले राइट हैंड चेक कर ली वो एग्जिस्ट नहीं कर रही हो, तो आप सीधा उसमें बोल सकते हैं कि वो डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड है, उसमें दूसरा आपको चेक करने की ज़रूरत है नहीं है. ओके. 2 raised to power 1 by x is, this value is limit h tends to 0, 2 raised to power 1 by h, what we get 2 raised to power infinity is
infinity, or we can say not defined or doesn't exist. Okay, so we can say this given function fx has discontinuity of second kind at x is equals to 0. Correct. Now third kind of discontinuity, that is removable discontinuity. In removable discontinuity, if limit exists, that means limit x tends to a fx एग्जिस्ट करती है, इसके अंदर लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी और राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, एंड आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, ओनली देन आप बोल सकते हो कि लिमिट x टेंड्स टू a f x एग्जिस्ट करती है. ओके, तो इसमें आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, बट दिस लिमिटिंग वैल्यू x टेंड्स टू दिस लिमिट, ये आपकी फंक्शनल वैल्यू के इक्वल जब नहीं आती, देन वी कैन से दिस फंक्शन f x has removable discontinuity. रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एट, अब यहाँ ए पॉइंट पे है अगर ये केस है तो ए पे फंक्शन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. अब इस चीज़ का मतलब क्या है, से एग्जाम्पल एफ एक्स इज साइन 2x by x when x is not equals to 0 and functional value is say 1 at x is equals to 0. okay, now इसमें अगर हम लिमिट कैलकुलेट करना चाहेंगे, लिमिट x इज इक्वल्स टू a, a नहीं, यहाँ पे हम 0 पे चेक कर रहे हैं. ओके, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, आप इसको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बना के भी चेक कर सकते हैं, और हम इस तरह से भी डायरेक्टली चेक कर सकते हैं इसको. ओके, चलो हम इसको लेफ्ट हैंड लिमिट से ही चेक करते हैं. लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx. ओके, सो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 2 of minus h by minus h. When we multiply and divide this is minus 2 times sine 2h divided by minus 1 को हम अलग कर लेते हैं and 2h हम 2 से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया. then we know that when limit x tends to 0 sin x over x, that value is 1. so what we get, 2 limit h tends to 0 sin 2h over 2h, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2. करेक्ट. लाइकवाइज राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f of x, कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 2h बाई h, अगेन 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे हम, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 2. सो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ गई, कितने इक्वल, 2 के इक्वल हमारे पास है. बट द फंक्शनल वैल्यू एट 0 इज फंक्शनल वैल्यू एट 0 कितना है, दैट इज 1. ये गिवन है हमारे पास, फंक्शनल वैल्यू एट 0 1 गिवन है. तो हम इजीली देख सकते हैं इन दिस केस दैट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये इक्वल नहीं है फंक्शनल वैल्यू एट 0 के. सो दिस फंक्शन एफ एक्स हैज़ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 0. अब रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का क्या मतलब है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का मतलब है अगर इस फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं, लाइकवाइज वी कैन डिफाइन दिस फंक्शन एज sin 2x by x when x is not equals to 0 and 2
एंड x इज इक्वल्स टू 0। तो ये फंक्शन एफ एक्स अब आपका कंटिन्यूस हो गया, मतलब इसमें से डिसकंटिन्यूटी हमने रिमूव कर दी। तो इस तरह की डिसकंटिन्यूटी जहाँ होती हैं दैट इज कॉल्ड एज रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। और नाउ अब ये क्योंकि हमने चेंज कर दिया तो ये एफ एक्स फंक्शन रिमूव, इसमें से डिसकंटिन्यूटी रिमूव कर दी हमने, तो दिस फंक्शन एफ एक्स और से एफ डैश एक्स, दिस फंक्शन नॉट एफ डैश से एफ बार, दिस फंक्शन नाउ इज कंटिन्यूस, फंक्शन हो जाएगा ये हमारे पास।